Hello students, I am Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today we are going to solve example 6.1 to 6.4. Let's start with the example 6.1. Suggest a condition under which magnesium could reduce alumina. Right? We have to say a condition in which magnesium can reduce alumina to aluminium. Right? Here you can see the Allingham diagram, right, in which two lines are shown. Of first one is for the magnesium and second one is for the aluminium, right. In this diagram, the element present in lower is more reducing, right. You can say that lower element is more reducing, right. Means if magnesium is lower than that of aluminium, it can reduce aluminium. But here you can see that after a intersecting point, this is an intersecting point, at that point the delta G value for the magnesium and aluminium will be 0, right. Here below that point, magnesium having lower delta G value than aluminium, and above that point aluminium having a lower value than that of magnesium, right, because this is a graph for the aluminium and this is for the magnesium oxide, right. So from the above Allingham diagram, Al2O3 and MgO, alumina and magnesium oxide lines are shown, right. Here two lines are shown. At the point of A, they intersect each other, right. At the point A, they intersect each other. At the point A, delta G becomes 0 for both reduction, right. बोथ रिएक्टेंट रिडक्शन कि यहाँ पे जो ए पॉइंट है वहां पे MgO और Al2O3 है, उनका जो रिडक्शन रिएक्शन अगर हम कैरिड आउट करवाते हैं तो उसके लिए जो डेल्टा G आएगा वो कितना आएगा, 0 एट द पॉइंट ऑफ ए, राइट. सो वी कैन से दैट बिलो द पॉइंट ए magnesium can reduce alumina, right. Below that point magnesium having more negative delta G value, so it can reduce aluminium, but above point A it cannot reduce alumina, right. So we just have to find out the condition. So we can say that below the point A magnesium can reduce alumina, right. Now discuss the question 6.2, example 6.2. Although thermodynamically feasible in practice, magnesium metal is not used for the reduction of alumina in the metallurgy of aluminium. Why, right. यहाँ पे ये हमने देखा कि जो मैग्नीशियम है, it is more negative delta G value having element than that of the aluminium, so it can reduce the aluminium below the point A, but it not used in the metallurgy of aluminium, right. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये बिलो जो A है उसके पहले तो मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गया, सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो X है वहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है. मीन्स अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर ड्यूरिंग मेटलर्जी ड्यूरिंग रिडक्शन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कैन नॉट रिड्यूस दैट एल्यूमिना, राइट. और अगर वो मैग्नीशियम एट हायर टेम्परेचर एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं कर सकता है तो हम उसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो लॉस का सौदा हुआ, सही है, घाटे का सौदा हुआ. दैट्स व्हाई वी कैन राइट आंसर फॉर दैट this question as the temperature below the point of interaction
ये जो टेम्परेचर पॉइंट ए है उसके बिलो टेम्परेचर पे, सही है। इससे आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो बिलो टेम्परेचर होगा। मैग्नीशियम temperature below the point of interaction of Al2O3 and MgO curves, magnesium can reduce alumina, right? कि A पॉइंट से बिलो जाओगे टेम्परेचर में तो आप जो हमारा मैग्नीशियम है इट कैन रिड्यूस एल्यूमिनियम, बट अबव द पॉइंट मैग्नीशियम कैन नॉट रिड्यूस एल्यूमिना, राइट। बट अगर उससे आप आगे जाओगे तो एल्यूमिनियम इज more negative than magnesium, so it cannot reduce, magnesium cannot reduce that aluminium, right? So above that point magnesium cannot reduce the alumina, and so this process will be uneconomical, right? कि अगर हमने ऐसा किया तो ये तो क्या हो जाएगा, घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि हमें टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया तो फिर रिडक्शन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, राइट? So that's why we does not use magnesium for the reduction of alumina in the metallurgy of magnesium, और उसी वजह से हम मैग्नीशियम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नीशियम सिर्फ लोअर टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम को रिड्यूस करता है, एल्यूमिनिया को रिड्यूस करता है, जबकि हायर टेम्परेचर पे वो उसे रिड्यूस नहीं कर सकता है ना। Example 6.3. Why is the reduction of metal oxide easier if the metal formed is in a liquid state at the temperature of reduction? कि जो भी टेम्परेचर होगा हमारा रिडक्शन का, उस टेम्परेचर पे अगर हम सॉलिड की जगह लिक्विड मेटल ऑक्साइड को लेकर उसका रिडक्शन करवाए तो रिडक्शन विल बी इजियर। और ये क्यों होगा वो हमें आंसर देना है। तो हमें ये पता है कि इफ डेल्टा जी बिकम्स मोर नेगेटिव रिएक्शन कैरिड आउट मोर इजीली, जितना डेल्टा जी नेगेटिव होगा उतनी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, मतलब कि वो इजीली कैरिड आउट हो जाएगी, सही है। और डेल्टा जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे जो डेल्टा, अगर ये टर्म यहाँ पे क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो ये वाली टर्म कैसी है, नेगेटिव है। तो ये वाली टर्म अगर किसी भी तरह से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो डेल्टा जी बिकम्स मोर नेगेटिव। यहाँ पे हमें टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि टेम्परेचर तो रिडक्शन का जो होगा वही रखना होगा, लेकिन हम डेल्टा एस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। डेल्टा एस क्या है, हमारी एंट्रोपी है। क्या है वो, हमारा एंट्रोपी है। एंट्रोपी मीन्स द रैंडमनेस, और जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मोर रैंडम इन द लिक्विड स्टेट एज कंपेयर टू अ सॉलिड स्टेट। मीन्स इन द सॉलिड स्टेट एंट्रोपी इज लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड स्टेट, राइट। मीन्स के जो लिक्विड स्टेट है इसमें एंट्रोपी विल बी हायर, राइट। अगर एंट्रोपी हायर होगी, सही है, तो क्या हो जाएगी, ए टर्म पूरी बढ़ जाएगी, और उसी वजह से डेल्टा जी क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। इफ द एंट्रोपी वैल्यू इंक्रीज देन डेल्टा जी बिकम्स मोर नेगेटिव, राइट। एंड हेंस अगर ये डेल्टा जी मोर नेगेटिव हो गया, तो हमने पहले ही बोला कि इफ डेल्टा जी बिकम्स मोर नेगेटिव देन द रिएक्शन कैरिड आउट मोर इजीली, सही है। तो डेल्टा एस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है जब हमने लिक्विड स्टेट यूज किया तब, तो उसकी वजह से डेल्टा जी क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बिकम्स इजियर इन द लिक्विड स्टेट, राइट। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट example question 6.4. At a site low grade copper ores are available and zinc and iron scraps are also available. Which of the two scraps would be more suitable for the reduction of the least copper ore and why? राइट, हमें सिर्फ इतना बताना है, अगर हमें कॉपर ओर का रिडक्शन करना हो तो हम जिंक या आयरन दोनों में से किसे यूज कर सकते हैं। बोथ आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट। बोथ आर जिंक एंड आयरन, बोथ आर रिएक्टिव देन कॉपर। सो हम दोनों का बाय द जिंक एंड आयरन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, कॉपर का रिडक्शन कर सकते हैं, सही है। लेकिन अगर आयरन और जिंक की बात करें तो जिंक इज मोर नेगेटिव देन आयरन ऑल्सो, राइट। So the reduction will be a faster in case of zinc scrap, क्योंकि क्या है, जो कॉपर है
उससे तो ये दोनों क्या है, रिएक्टिव है, जिंक एंड आयरन दोनों कॉपर से रिएक्टिव है, तो ये क्या कर सकते हैं, इसका रिडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन ऑल्सो, सही है, मतलब जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा ये कॉपर को जल्दी फास्ट से क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। सो the reduction reaction carried out in the presence of zinc scrap will be a faster, right? But zinc is costlier metal than iron, so using iron scrap will be more advisable and profitable. सही है, ये क्या देगा, जिंक फास्ट रिएक्शन देगा, फास्ट रिडक्शन रिएक्शन देगा, लेकिन वो क्या है, कॉस्टली भी तो है। तो कॉस्टली चीज हम यूज करें उससे बेटर है कि आयरन तो बहुत सस्ता मिलता है, सही है, तो रिडक्शन तो कॉपर का आयरन से भी हो सकता है, थोड़ा सा स्लो होगा एज कंपेयर टू जिंक, स्लो होगा, लेकिन रिडक्शन कैरिड आउट हो सकता है, सही है। तो अगर हम आयरन का यूज करके कॉपर को क्या करें, रिड्यूस करवाए, तो इट इज मोर एडवाइजेबल, क्योंकि वो सस्ता है और उसी वजह से वो क्या है, प्रॉफिटेबल भी है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द एग्जाम्पल्स, राइट? इफ देयर इज एनी क्वेरी you can message me and ask me. Thank you.